مجھے کہنے لگے اکسی یہ جو ضیاء ہے نا he will do more damage to Islam than anyone else. میں نے سوچا یار کہ اللہ میاں تو اللہ میں ہی نہیں رہ سکتا جو میرے دماغ میں نہ آئے. How can he be God? اب تو وہ میٹا فزکس رہی نہیں, اب تو آپ کوانٹم فزکس جو آ گئی ہے اس نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے صوفیوں کا بھی اور میٹا فزکس کا بھی. اور اچھا سر, آپ نے ایک کتاب لکھی خدا کی تلاش میں. بے شک. خدا تو کہتے ہیں شہرگ سے بھی قریب ہے اور پتہ نہیں پھول کے کھلنے میں بھی خدا نظر آتا ہے, تو پھر آپ کو اتنی جد و جہد کیوں کرنی پڑی خدا کو ڈھونڈنے کے لیے, اور ملا خدا؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی مسلمانوں کو تو ضرورت نہیں. اچھا. کیونکہ وہ تو ویسے ہی اندھی ایک بلیف ہے, وہ تو ایسی بلیف ہے جو جس کو آپ یعنی اس کتاب کی ضرورت اس نئی پود کو ہے جو عقلی ہے, جو اب خدا کو صرف ایک جذبے ایک فیتھ کے طور پہ نہیں مانیں گے. اگلی جو جنریشن آئے گی وہ دے نیڈ, اس کو خدا کی ضرورت ہوگی. نیچے کے بقول ان کا خدا تو وہ بات دوسری ہے, وہ بالکل نہ مانے وہ بات دوسری ہے, لیکن اگر کوئی مانے گا تو وہ دلیل سے مانے گا. وہ اس کو ضرورت ہوگی کہ بھئی وہ خدا جو ہے وہ اچھا. وہ ہمارے جو بزرگ ہیں پرانے, وہ جتنے بھی اولیاء کرام تھے بزرگ تھے, وہ ایک بات کہہ گئے کہ اللہ میاں کو جانا نہیں سکتا, یعنی یہ علم میں نہیں آتا. میں اس میں بلیو نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا تھا, میں نے سوچا یار کہ اللہ میاں تو اللہ میں ہی نہیں رہ سکتا جو میرے دماغ میں نہ آئے. How can he be God if I cannot even تو یہ ضرور جس حد تک میرا مائنڈ ایوالو کر گیا اس حد تک اللہ کو جانا جا سکتا ہے. That was the idea. ایسا ٹھیک ہے, every generation may have to seek him again. ریوزٹ اینڈ ریوائز. جی ریوائز. بٹ جتنا علم ابھی ہو گیا ہے اکٹھا, چاہے نفسیات میں ہو گیا, چاہے سوسیولوجی میں ہو گیا, چاہے فزکس میں ہو گیا, چاہے بایولوجی میں ہو گیا, بٹ فلسفے, انہی ٹول سے آپ اس حد تک خدا کو جان سکتے ہیں جس حد تک آپ کا دماغ ایوالو ہوا ہے. جب فردر ایوالو ہوگا تو زیادہ بھی جان لیں. لیکن سر میری فیوریٹ رائٹر قرۃ العین حیدر نے بھی ایک جگہ لکھا ہے, اور میرا بھی یہ ماننا ہے کہ فزکس اور میٹا فزکس کو مکس نہ کریں تو مناسب نہیں ہے. کیوں آپ ایک میٹا فزیکل چیز کو فزکس میں لانا چاہتے ہیں؟ اب تو وہ میٹا فزکس رہی نہیں, اب تو آپ کوانٹم فزکس جو آ گئی ہے اس نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے صوفیوں کا بھی اور میٹا فزکس کا بھی, اور اس نے تو ختم کر کے, وہ تو پیرلل یونیورسٹی میں بھی یونیورس میں مانتی ہے. وہ تو کہتی بیک وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں, بیک وقت ایک اور جگہ پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پر آپ جو ہے یو آر ڈیٹرمنڈ بائی کاز اینڈ ایفیکٹ, اور وہاں پر آپ امنس پاسبلٹیز ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر. تو کوئی ڈٹرمن ہی نہیں کر سکتا. سر اے آئی کا دور آ گیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جی جی جی. اس میں جو یہ تصوف والی کہانی قدرت اللہ شہاب نے بھی شروع کی, بڑے بڑے رائٹرز بھی ہوئے, ابھی بھی ایک پوری ایک فیلڈ ہے نا اسپریچویلٹی. سو اے آئی کے دور میں اسپریچویلٹی کو آپ کہاں جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ سر پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات سیدھی بتاؤں کہ یہ گوگل ہو گیا, یہ اے آئی ہو گیا, یہ چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, یہ سب انفارمیشن بیسڈ ہے. جو آپ دیں گے وہی بیسیکلی انفارمیشن بیسڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا, انسان ہیومن بینگ, وہ انفارمیشن سے بہت آگے ہے. ابھی انفارمیشن کی ایج جو ہے نا, یہ تو آپ کو پیچھے لے جاتی ہے. انسان آئیڈیاز کے لیے بنا ہے. انسان اس لیے نہیں بنا کہ وہ انسان کوئی کیلکولیٹر نہیں ہے. انسان کا دماغ اللہ میاں نے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ یہ دیکھے کہ اچھا جی بابر کون سے زمانے میں پیدا ہوا تھا, کون سی تاریخ کو مرا تھا. This is a stupid question. This is not a question worthy of being put to a human being. اگر آپ انسانی ذہن ہو جو ہو آپ, تو آپ کو آئیڈیاز کے لیے بنایا گیا. آپ یہ جو فیکٹس ہیں
इनको सिंथेसाइज करके कोई बड़ी सोच निकालोगे तो आप बड़े हो, वरना आप क्या हो। तो मैं समझता हूँ ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगे इंसान का। यही आइडियाज पे मैं दोबारा जाऊंगा कुदरतुल्लाह शहाब पे जी। मुमताज़ मुफ्ती ने भी ऑब्जर्व किया कि ही वाज अ डिफरेंट क्वाइट मैन इनटू हिज ओन वर्ल्ड। फिर हमारी जो ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, बट वेरी डीप, वो जो इसराइल भी गए और वो तो ये कुछ आपने खुद भी कुदरतुल्लाह शहाब से आपकी मुलाकातें रही होंगी, तो आपकी ऑब्जर्वेशन और उनका इसराइल वाला ट्रिप और कुछ था उनका कनेक्शन, कुछ ऑब्जर्व किया आपने? सर मेरे साथ तो बड़ा अजीब हादसा हुआ। मेरी कुदरतुल्लाह शहाब के साथ उस वक्त मुलाकात हुई जब वो एक इंटेलेक्चुअल तो थे, ठीक है, शहाबनामा तो उन्होंने लिखा था, वो ज़हीन तो थे, पुराने ICS थे। तो मैं नफ्सियात का शागिर्द था, नफ्सियात पढ़ी मैंने, सोशियोलॉजी भी मुझे बड़ी अपील करती थी। तो वो ज़माना था 1966-67, फ्रेश ग्रेजुएट, ऑनर्स करके मैं आतिश जवान, हाँ जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से निकला था। माय माइंड वाज एब्सोल्युटली रेजर शार्प। तो उस जमाने में या कैपिटलिज्म था या कम्युनिज्म था, और इनकी बड़ी लड़ाई थी आपस में, खौफनाक, दुनिया फंसी हुई थी, यही दो, हाँ दो, मैंने खौफनाक लड़ाई। तो मैंने एक किताब लिखी हमारी, ओके, पूरा साइनॉप्सिस लिखा, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने इन दो सिस्टम्स को कंपेयर किया, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, और मैंने कहा ये दोनों ही नहीं चलेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल के ऊपर इनके ये असरात हैं, ऐसी पर्सनालिटी ये निकालते हैं, और ये बात नहीं बननी, ये ह्यूमन बीइंग्स इससे बड़े हैं। तो ये इन दोनों को, शायद दोनों के दरमियान एक कोई रास्ता हो। मैं किताब लिखी, बड़ी मैंने मेहनत की उस किताब पे, बड़ी मैंने मेहनत की, और बड़ी अपनी तरफ से अंग्रेजी बड़ी खूबसूरत, मैं आई वाज वेरी फ्रेश। वो साइनॉप्सिस लिख के तो मैं कुदरतुल्लाह शहाब के पास चला गया। मैंने कहा जाके उनको दिखाया, मैंने कहा मुझे बड़ी दाद मिलेगी, मैंने कहा अशश हो जाएगा। और उस बंदे ने ऐसे करके किताब देख के उधर रख दी, और पंजाबी में कहते हैं ना, पोले जे मुँह ना, वो पोले से होड़ बना के उन्होंने कहा अक्सी अभी नहीं, मेरी तो दुनिया अंधेरी हो गई। मैं तो, मुझे तो समझ ना आए कि यार ये हुआ क्या है। मैंने तो एक और किताब भी लिखी हुई थी, उस किताब का नाम था द हंग्री मैन, और मेरी एक नफ्सियात की थ्योरी थी। मेरी थ्योरी ये थी, जो थ्योरी की हद तक रह गई, थ्योरी ये थी कि इंसान जो है वो सिर्फ एक जिबिलत के साथ पैदा होता है, हंगर। बाकी जो कुछ भी है ना, एक्विजिशन है, ये है, ईगो है, सेक्स है, ये सब उसी की ट्रांसफॉर्मेशन। फ्राइड का जिस तरह सेक्स था, आपकी हंगर थी, फ्राइड के पैरेलल आप। हाँ जी, हाँ जी, मैंने वो पढ़ी है मेरे पास, द हंग्री मैन। तो वो द हंग्री मैन, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जाके कुदरतुल्लाह शहाब के सामने फिर वो भी रखूं कि देखो ये हंगरी। वैसे मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि शहाब को नफ्सियात के माहिर तो नहीं थे। वो भी किताब डिच हो गई, द हंग्री मैन। शायद मैंने, काश मैंने लिख दी होती उस वक्त, आइडिया बड़ा जबरदस्त था। अच्छा, तो उसके बाद हुआ क्या, कुछ अरसे के बाद कुदरतुल्लाह शहाब कॉल्ड मी, मुझे बुलाया। ही वाज एजुकेशन सेक्रेटरी एट दैट टाइम। मैं तो नॉन प्लस हो गया, मुझे समझ नहीं आई, मैं कहा मैं प्रोफेसरी कर लूँ, क्या कर लूँ। और आपको ये बड़ी हैरत होगी कि मैं 2 साल नफ्सियात का प्रोफेसर रहा सर, गवर्नमेंट कॉलेज में भी और कॉन्वेंट कॉलेज में लड़कियां भी पढ़ाता था। जबरदस्त। मुमताज मुफ्ती के बेटे हैं। मैंने फिर खुद छोड़ दिया हूँ। अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि अक्सी एक स्कॉलरशिप है, प्राग चेकोस्लोवाकिया, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री, वाह ऐसी है, तो तुम वहाँ चले जाओ। मकसद दैट बुक वाज इन हिज माइंड। हाँ,
You know, He registered that. it was in his mind, but he had never spoken. He had never encouraged me. He said, "Tu वहाँ चले जाओ." He wanted me to gain some experience. तो मैं वहाँ चला गया. तो वहाँ तो मेरे साथ हाथ हो गया. कोई ना अंग्रेजी बोले, ना कोई मेरी जुबान समझे, ना मैं उनकी जुबान समझे. मुझे प्रोफेसर मिला, प्रोफेसर स्वेकल. उसने मुझे पहले दिन कह दिया, मैंने तो अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं तो तुम्हें नहीं, यू डू व्हाट यू लाइक. अंग्रेजी की किताब कहीं नहीं, कुछ भी नहीं. अच्छा, मैंने वहाँ जाके एक सब्जेक्ट उठा लिया, होलनेस. इट इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोज टू अल्टीमेटली गॉड, क्योंकि होलनेस, मैंने होलनेस उठा लिया. मैं बैठ गया उसके ऊपर. तो मेरे साथ दूसरा हाथ ये हुआ कि मुझे आर्नल्ड टाइनबी की और इसकी अंग्रेज़ों की लिखी हुई अनवेलिंग ऑफ द वेल्ड वन, कशफुल माजूब मेरे हाथ आ गई. वो दाता साहब की मैंने किताब पढ़नी शुरू कर दी. इधर से मैं वेस्टर्न फलसफा पढ़ता था, प्रैग्मेटिज्म, दिस दैट. उधर से मैं अली मखदम हजवेरी, दाता का पढ़ता था. वो अजीबो गरीब एक मेरे ऊपर. तो दिस इज व्हाट कुदरतुल्लाह शाह डिड टू मी. ठीक. सो इसराइल क्या करने गए थे वो? जी, इसराइल क्या करने गए थे? जहादी था अंदर से वो. अच्छा, हाँ, तालिबान थे? नहीं, हाँ बिल्कुल जहादी था, पक्का, लेकिन छुपा हुआ. और ही वॉज, आप माने ना माने, लेकिन ही वॉज ऑन अ मिशन. अच्छा. तभी उसकी देखें तकर्रियां देखें आप, अयूब खान के साथ लग गया. जिया ने उसकी मिन्नतें की, आजा वापस, नहीं गया. और मुझे खुद कहा उसने, मैं सब बैठा हुआ था, कम बोलते थे, और मुझे कहने लगा, अक्सी, जिया था, जिया का उस दिन भी मैसेज आया था कि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री ले ले. ही रिफ्यूज्ड. ही रिटायर्ड एट 58, खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट. वो डिवाइन मिशन पे थे. ही वॉज ऑन अ मिशन. अच्छा, ये मेरा ख्याल है. अच्छा, तो मुझे कहने लगे, अक्सी, ये जो जिया है ना, he will do more damage to Islam than anyone else. प्रेडिक्ट कर दिया था उन्होंने. अच्छा, तो he had, you know, वो जो बंदे उनके करीब थे ना, वो उनको कुछ ना कुछ झलक नजर आ जाती है. अच्छा सर, तो हम उनके ऑरे में ट्रैप थे. हाँ, अब भी हैं. सर, आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, उस ऑरा से आपको निकालने की कोशिश करता हूँ. करें सर, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी और सेक्सुअल पावर, क्योंकि मैं एक फ्रॉइड का बहुत ज़्यादा हूँ, और हम स्पिरिचुअलिटी और बुद्ध मत, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ कि ये इंसान को मेहनत से भी दूर ले जाते हैं, कि अपनी टेंशनें. ठीक है. सो खास तौर पे ये जो एक सेक्सुअल पावर है, जो जिन्स का घोड़ा है, इसका भी रूहानियत से कुछ ताल्लुक है? बहुत ज़्यादा. देखें जी, क्या वजह है कि पाकिस्तान में बुद्धिज्म को तो छोड़ दें आप, बाकी तमाम मजहब की बात ना करें. उसकी वजह है बिकॉज सारे मज़ाहिब ने आके, जीसस क्राइस्ट ने भी आके कहा कि यार हमने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया है, हम गुनाहगार हैं और ये दुनिया सज़ा है और इसको तर्क कर दें आप. यही कहा है ना. Only Prophet Muhammad was one singular person who said, no, this life is valuable because you can only gain your destiny through this life. This was such a unique thought. कि किसी पैगंबर ने पहले नहीं कहा था. पैगंबरों ने तो यही कहा कि आप बड़े गुनाहगार हो, आपने बहुत गुनाह किया है, आप रिलिंक्विश. बुद्धा ने क्या, बिल्कुल ही छाड़ दो. तो इधर कोई थोड़ी सी राख डालें सर में और आलती पालती मारे और करें. This is not the image of Islam. Islam has been misunderstood. वो इस्लाम तो बैलेंस क्रिएट करता है, एक मयाना रवि का रास्ता उसने निकाला है और यूनिक थिंकिंग दी है कि पाजी ये जिंदगी जो है यही इम्पोर्टेंट है. It's only through this you do good conduct here and you win. तो आप इसको तर्क ना करें, इसके अंदर रहें. अच्छा,
तो what were we talking about? We were talking about Jinns sex. and अच्छा, life. अब अर्ज ये है कि whether you believe this or not, जो अरबिक कुरान है, अरबिक कुरान, वो जब उसको आप किसी कलमे को रोटेट करते हैं, जिस तरह आप ये मोटर है बाहर लगी हुई, आपको पता है मोटर क्या है? मोटर में मैग्नेट्स लगे होते हैं, एक नफी होता है, एक प्लस होता है, नफी असबात, ऐसे ही। अच्छा, व्हेन यू रोटेट देम इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो जब आप कहते हैं ला इलाहा नफी इल्लल्लाह असबात, इट्स ए साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल मोटर। ठीक है। जब उसको आप चर्न करते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होती है। जो लोग मौलवी कुरान पढ़ाते हैं स्पिरिचुअल, वो इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि आपको जितने मस्जिद में रेप के किस्से मिलेंगे आपको कहीं और ना स्पिरिचुअल एनर्जी। सॉरी, मुझे लोग मारेंगे, मुझे मौलवी भी मारेंगे। बात यह है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी हैंडल नहीं हो सकती। तो मना है, आपको नहीं कहा रसूल ने, हमारे प्रॉफिट ने नहीं कहा कि आप ये दुनिया त्याग के तो आप चिड़े काटो, आप ये करो, आप मौलवी क्योंकि जो दीन भी आपको एनर्जी देगा उसको निकालने के लिए एक जो सेक्सुअल एनर्जी की डिसेमिनेशन है वो बहुत जरूरी है। या तो उसको आप चैनलाइज करें, जो हमारे मुआशरे ने सिखाया नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ तो स्कूलों में फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर प्ले ग्राउंड्स नहीं है, सड़कों पे लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आधी रात को जब आपने गाड़ी चलानी होती है आधी सड़कों पे क्रिकेट खेल। तो रूहानी ताकत को अगर सही रास्ता नहीं मिलेगा, हाँ, तो फिर वो जिनसी बदयांती की फॉर्म में भी absolutely you as a psychiatrist would understand this more than anyone else। बात यह है कि बुनियादी बात ये समझनी चाहिए कि जिस तरह एक इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह आपको अरबिक जो कुरानिक टेक्स्ट है, जो डिवाइन लैंग्वेज है, वो डिवाइन लैंग्वेज है। बाकी मजहबों में तो डिवाइन लैंग्वेज खत्म हो गई है। हिंदुओं में जो डिवाइन लैंग्वेज है तो सिर्फ शादी करते वक्त जब चार चक्कर, इसलिए पीर बच्चे भी बांटते फिरते हैं ना। हाँ, तो देखो मुसलमानों के बच्चे क्यों हैं इतने, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 14 बच्चे, वाई? आप नॉर्वे चले जाए, मैं every second year I had been going to Norway because I was working with Folkeskunde Museum there। birth rate 0, वो बच्चे ही नहीं पैदा होता उनसे। मौलवी वहाँ हमें एक्सपोर्ट कर। अच्छा, आखिर में अपने वालिद साहब की कोई बात, कोई छोटी सी चीज, उस पर हम इख्तिताम करेंगे। वालिद साहब की एक बात थोड़ी है, तो बहुत सी बातें, हम दोबारा भी बैठेंगे सर, आपको मैंने छोड़ना नहीं है। ठीक है। बहुत सी बातें हैं जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, तो मुझे अब समझ आती हैं। मतलब मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, वालिद साहब ने एक अदबी सिलसिला बनाया, उसका नाम था राबता। सर उसमें बड़े बड़े लोग थे, ठीक, जमीलुद्दीन आली भी आते थे, अदा जाफरी भी थी, और बड़े लोग थे उसमें, सब हफीज जलंधरी भी था, और सब ये भी थे, निश्तर भी थे, जमील निश्तर भी था, उसको भी शायरी वायरी का शौक था। ये जिनका नाम लिया आपने, बहुत लोग थे उसमें। तो वो राब्ते की एक महफिल होती थी हर महीने सर, उसके पीछे थे मुमताज मुफ्ती के यार राब्ता होना चाहिए। तो मुझे भी, मैं कहता था यार ये अब्बा किधर ये स्कूटर पे जाएगा, तो मैं कहता चल बाबा मैं तेन लाया, मैं तुझे लेके चलता हूँ, मैं गाड़ी में, मैं भी पहुंच जाता था। तो उनकी मेहरबानी मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दे न्यू मी एज देयर डीजी लोकविरसा। तो मेरे वालिद साहब वहाँ जाके एक बुल इन अ चाइना शॉप बड़ी खप डाल देते थे कि यार वन डिश ओ तेनू क्या सी यार, वन डिश तू 3 खाने पकाए हुए ने, मैं अगली बार नहीं आवागा, मैं वन डिश इतनी वो इतना वो। तो मैं शर्मिंदा होता था कि यार वो बीबी ने
आदा जाफरी ने 4 खाने बना दिए हैं तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो, हाँ। इतने मोजस लोग आए, चुप करके खा लो बाबे। तो बाबा खप डाल देता था, वो परवाह नहीं करता था, वो जमील निश्तर को भी हाँक देता था, वो उसको भी वो तनु क्या सी एक डिश तूने 3 बनाई। बड़ा मैं शर्मिंदा होता था। मर गया मेरा बाप, मैं शर्मिंदगी में मर गया। बहुत देर के बाद मुझे समझ में आई बात, चूंकि उसके मरने के बाद क्या हुआ कि वो राब्ता जो थोड़ी दूर चला फिर बंद हो गया, वो जो नहीं जो थोड़ी देर चला, तो एक राब्ते पे मुझे बुलाया गया। तो वो राब्ता जो था वो घर में नहीं था, वो इस्लामाबाद क्लब में था। वहाँ पर एक खास बड़ा हॉल जो है वो रिजर्व किया गया था, 4 बैरे खड़े थे, बुफे 36 का बुफे लगा हुआ था, अदब सिफर था, खाना ही खाना था। तो एक रैट रेस और तरह की कैचिंग अप विद द जॉनसेस शो बाजी वो चल पड़ी। नतीजा क्या है, राब्ता बंद हो गया। और शिफ्ट जो था ना, जो सारा फोकस था वो अदब से शिफ्ट हो गए, इनोवेशन से शिफ्ट हो गए, वो खाना बजाना और स्टेटस और उस पर चला गया। तो that day I realized कि वो मुमताज मुफ्ती जो वन डिश कहता था ना, why was he adamant? तो इस किस्म की उनकी बहुत बातें थी। मसलन उनकी एक और बात मैं आपको बताऊं, आपके साथ उनकी फर्ज कीजिए बरखुरदार हैं आप, आपसे दोस्ती हो गई, नौजवानों से बड़ी दोस्ती रखते, 18 साल की लड़की से भी दोस्ती थी, और आप जाके कत्ल कराएं और आके मुमताज़ मुफ्ती को बताएं कि सर मैं वो मेरी महबूबा है ना, मैं उन्हें कत्ल कराया। तो मुमताज़ मुफ्ती चाहे महबूबा उसकी कोई सकी रिश्तेदार हो, आपको माफ़ कर देगा, लेकिन किसी छोटी सी बात पे वो आपको पकड़ लेगा, बिगड़ जाएगा, माफ़ी नहीं करेगा, बहुत मामूली सी बात। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई कि जो रवैया है ना अंदर के इंसान का, वो पता ही छोटी बात से चलता है। वाह, बड़ी बात जो है वो तो एक्सीडेंटल भी हो सकती है, जज्बात में भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, लेकिन जो रोजमर्रा में जो छोटी बात है ना, वो नफ्सियाती अंदर का इंसान दिखा देती है कि इसका रवैया क्या है। दिस यूज्ड टू डू, छोटी बात माफ नहीं करता था। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने टाइम लिया। सो नाजरीन, आखिरी बात जो सर ने की कि मुमताज़ मुफ्ती जैसा बड़ा अदीब भी, एक बहुत बड़ा अदीब भी छोटी बातों को बहुत तवज्जो देता था। तो अपनी ज़िंदगी में हम बहुत बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी बातों को तो तवज्जो देते हैं, छोटी बातों को कई दफ़ा इग्नोर करते हैं और वो बहुत अहम होती हैं। सर थैंक यू सो मच, आपका इतना टाइम।